We are doing chapter national movement and today we will do salt tax. So in this you will write like this. British जो थे ना, listen carefully. British Indians को salt collect करने नहीं देते थे. British collected salt and then they sold salt in the market. They imposed salt. They imposed tax on salt also. So Gandhi ji wanted to break down this salt, wanted to abolish this salt tax because it was a commodity that used in each and every kitchen, used in the kitchen of rich, maybe poor, हर एक के kitchen में salt use होता था. And on the other hand, Gandhi ji also wanted to challenge British government by using this small commodity. इस छोटी सी commodity से वो एक बड़ी सी power को challenge करना चाहते थे. So is it clear? You have to write like this. Listen again. गांधी जी ने क्यों choose किया to break the salt law? Why did Gandhi ji choose to break the salt law? तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि British did not allow Indians. British never allowed Indians, या British did not allow Indians to collect salt from the sea. British Indians को salt collect करने नहीं देते थे. The sole right या monopoly, British did not allow Indians to collect salt from the sea. The sole right, sole या फिर monopoly या कुछ भी कह सकते हो. The sole right to collect salt from the sea and to sell in the market was in the hand of British. किसके हाथ में था sole right? The sole right to collect salt from the sea and to sell in the market was in the hands of British. British imposed tax on salt. So this was not tolerated by Mahatma Gandhi and he selected salt. He wanted to abolish. This was not tolerated by Mahatma Gandhi and he wanted to abolish salt tax. तो वो क्या चाहते थे? He wanted to abolish salt tax because it was a commodity that used in the kitchen of. It was a commodity used in each and every kitchen, maybe of rich or poor. Gandhi ji wanted to abolish, क्या abolish करना चाहते थे? Salt tax, because it was a commodity that used in each and every kitchen, maybe of rich, maybe of poor. And on the other hand, हम ये भी बताएंगे कि गांधी जी wanted to challenge the big authorities such as British by using only a small commodity. एक इतनी सी commodity use करके गांधी जी एक बड़ी सी authority को challenge करना चाहते थे. And on the other hand, we can say Gandhi ji also wanted to challenge the big authorities such as British by using only a small commodity, that is salt. Is it clear? क्यों गांधी जी ने salt को ही चुना? First of all, the British did not allow Indians to collect salt from the sea. Sole right to collect salt from the sea and to sell in Indian market was in the hands of British. British imposed tax on salt. उन्होंने salt पे क्या लगा दिया? Tax. फिर हम बताएंगे कि ब्रिटिश ने जैसे salt पे tax लगाया तो अब salt का रेट तो हाई हो गया होगा ना. British imposed tax on salt. This was not tolerated by Gandhi ji. अब ये बात गांधी जी से tolerate नहीं हुई. And he wanted to abolish. He wanted to क्या abolish करना चाहते थे? Salt tax. He wanted to abolish salt tax because it was a commodity that used in each and every kitchen, maybe of rich or poor. And on the other hand, he wanted to challenge a big authority such as British by using only a small commodity, that is salt. British Indians को salt collect करने नहीं देते थे. British खुद collect करते थे and then उसे market में बेचते थे. तो British ने salt पे क्या लगाया? Tax. अब this was not tolerated by Gandhi ji.
गांधी जी क्या अबॉलिश करना चाहते थे? सॉल्ट टैक्स। बिकॉज क्यों ऐसा गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इट वाज कमोडिटी दैट वाज यूज्ड इन ईच एंड एवरी किचन, मे बी ऑफ रिच, मे बी ऑफ पुअर। चाहे वो अमीर की किचन थी, चाहे वो गरीब की किचन थी, हर किचन में सॉल्ट यूज होता था। फिर हम कहेंगे कि वैसे भी वो इतनी बड़ी पावर को, इतनी बड़ी अथॉरिटी को, ब्रिटिश को चैलेंज करना चाहते थे बाय यूजिंग अ स्मॉल कमोडिटी दैट इज सॉल्ट। एक छोटी सी कमोडिटी सॉल्ट से वो इतनी बड़ी पावर को चैलेंज करना चाहते थे। तो नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपने यहाँ पे डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 टू 47 के पीरियड वाली सारी बतानी है दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। डेवलपमेंट्स ऑफ द 1937 to 1947 period that led to the creation of Pakistan. तो सबसे पहले तो आप बताओगे फेलियर ऑफ कांग्रेस, फेलियर ऑफ कांग्रेस। तो इसमें आप बताओगे, फर्स्ट पॉइंट आप हेडिंग बना दोगे फेलियर ऑफ कांग्रेस में आप बता दोगे कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज, कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज लीग या मुस्लिम्स, कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज मुस्लिम्स, कांग्रेस मुस्लिम्स को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज मुस्लिम्स, मुस्लिम मासेस in 1930. Congress failed to mobilize Muslim masses in 1930, and this created the feeling of alienation among Muslims. Congress failed to mobilize Muslim masses in 1930. This created the feelings of alienation among Muslims. They considered them separate nation from Hindus. वो अपने आप को सेपरेट मानना शुरू हो गए थे। फेलियर ऑफ कांग्रेस में ही सारा लिख दो। कांग्रेस फेल्ड टू कन्विंस मुस्लिम मासेस, कांग्रेस मुस्लिम मासेस को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। दिस क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमंग मुस्लिम्स and they considered themselves separate nation from Hindus. अब वो अपने आप को सेपरेट मान रहे थे हिंदुओं से। and this also encouraged the Muslim League to widen its social support. This also encouraged the Muslim League to widen its social support. Listen again, failure of Congress. इसमें आप बताओगे कि कांग्रेस जो थी फेल हो चुकी थी। कांग्रेस फेल टू कन्विंस मुस्लिम मासेस, उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी। अब मुस्लिम्स के मनों में कैसी फीलिंग्स आ चुकी थी? एलिनेशन, अकेलेपन की। दिस क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमंग मुस्लिम्स and they considered themselves separate nation from Hindus, and this also encouraged the Muslim League to widen its social support. Next up heading बना दोगे election of 1937, elections of 1937। अब इसमें आप बताओगे election, these elections convinced the league, हेडिंग बनाओगे इलेक्शंस ऑफ 1937। अब इसमें आप बता दो कि these elections convinced the league that Muslims were in minority. These elections, इन इलेक्शन से मुस्लिम को कहीं ना कहीं ये फील हो गया था कि वो माइनॉरिटी में है and would always have to play, always were considered on second number in the country. सेकेंड फिडल मीन सेकेंड नंबर पे उन्हें रखा जाएगा कंट्री में। इलेक्शंस ऑफ 1937 कन्विंस द लीग दैट मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी एंड they were also considered on second number in the country. They were considered on second number
इन द कंट्री बाय हिंदूज, उन्हें हिंदू सेकंड नंबर पे रखेंगे, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो उन्हें हिंदू जो है ना वो सेकंड नंबर पे रखेंगे। Elections of 1937 convinced Muslims that they were in minority and this would keep them on second number. This would keep them on second number in the country by the Muslims, by the Hindus. This would keep them on second number in the country by the Hindus. Hindus उन्हें second number पे रखेंगे। तो ऐसी वाली ना उनमें आपस में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट आप कहोगे रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों में रिफ्ट, दरार पड़ जानी रिश्तों में, वो रिफ्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। अब इसमें हम बताएंगे देयर वाज रिफ्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। There was rift between Muslim League and Congress, and League saw itself as a sole spokesperson of India's Muslims. There was rift between Muslim League and Congress. Muslim League and Congress में के रिश्तों में दरार पड़ गई, and this convinced the Muslim League, and this convinced the Muslim League, this made the Muslim League to consider as the sole spokespersons of India's Muslims. This made the Muslims to saw itself as the sole spokespersons of India's Muslims. नेक्स्ट आप बता दोगे फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन। फेलियर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल इलेक्शंस ऑफ 1946, ये भी आप इसी में कवर करोगे। इलेक्शंस ऑफ 1946, इलेक्शंस ऑफ 1946, इसमें आप बताओगे League success in the seats reserved for Muslims. League's success in the seats reserved for Muslims encouraged them to demand for Pakistan. League success, League को success मिली थी ना, League's success in the seats reserved for Muslims encouraged them to demand for Pakistan. अब उन्होंने डिमांड फॉर पाकिस्तान रखी। अब आपका आ जाएगा फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन। फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, इसमें आप बताओगे after the failure of cabinet mission, League decided on mass agitation. After the failure of cabinet mission, League decided mass agitation for winning its Pakistan demand. After the failure of cabinet mission, Muslim League decided to mass agitate. Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand, and it announced 16th August 1946 as Direct Action Day, and it announced 16th August 1946 as Direct Action Day. Direct Action Day. So these were the reasons for the development of, for the creation of, these were the reasons for the creation of Pakistan. ये reasons बने थे for the creation of Pakistan. Now listen again. First of all, आपने बताया failure of Congress. Congress किसको convince नहीं कर पा रही थी? Muslim masses को, and this created the feelings of
alienation among Muslims. Thought themselves as a separate nation. They considered separate nation from Hindus. They considered themselves as separate from Hindus. उनको लगता था कि अब वो अलग है हिंदुओं से. नेक्स्ट आप कहोगे कि सेकंड पॉइंट में आप बता दोगे इलेक्शन ऑफ 1937. अब जो 1937 के इलेक्शंस भी हुए थे ना, तो लीग जो थी ना वो उसको फील हो गया था कि दैट वाज इन माइनॉरिटी एंड वुड आल्सो हैव टू प्ले द रोल ऑफ उन्हें सेकंड नंबर. दे वुड आल्सो हैव टू कीप ऑन सेकंड नंबर बाय द हिंदूज. उन्हें हिंदू सेकंड नंबर पे रखेंगे हमेशा. नेक्स्ट रिफ्ट आ गया, दरार पड़ गई किस किस में, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस में रिफ्ट पड़ गया. अब उस रिफ्ट से अब जो मुस्लिम्स थे ना उन्हें फील होना शुरू हो गया था, लीग को फील होना शुरू हो गया था, सोल स्पोक्स पर्संस ऑफ इंडियाज मुस्लिम, कि अगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठानी है तो लीग को ही करना है, तो कांग्रेस वुड डू नथिंग फॉर देम. ठीक है. फिर आप बताओगे 1946 के इलेक्शंस. अब इन इलेक्शंस में लीग को सक्सेस मिली इन द एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी. जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे तो लीग को यहाँ पे सक्सेस मिली एंड इससे उनको इनकरेजमेंट मिली एंड दे डिमांडेड फॉर पाकिस्तान. दिस ड्यू टू दिस दे गॉट इनकरेजमेंट एंड दे डिमांडेड फॉर पाकिस्तान. अब कैबिनेट मिशन जो इंडिया आया था, फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, उसके बाद लीग ने क्या डिसाइड किया, टू ऑन मास एजिटेशन एंड विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. And then it announced 16th August 1946 as the Action Day. तो उन्होंने 16th अगस्त 1946 को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक्शन डे. तो यही सारे रीजंस बने थे फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब व्हाट हैपेंड, अब इंडिया गदर मूवी वाला सीन आपको दिमाग में लाना है कि व्हाट हैपेंड, क्या क्या हुआ. वायलेंस हुई डिफरेंट पार्ट्स में. आप कहोगे कि कैसे कम्युनल राइट्स हुए, रिलीजन के नाम पे दंगे फसाद जिनको कहते हैं कम्युनल राइट्स. हिंदूज वर वर्स्ट सफरर इन, हिंदू एंड सिख्स वर वर्स्ट सफरर इन पाकिस्तान. मुस्लिम्स वर वर्स्ट सफरर इन इंडिया. तो इसको कहते हैं कम्युनल राइट्स. रिलीजन के नाम पे झगड़े, क्योंकि रिलीजन के नाम पे ही कंट्री का बंटवारा हुआ था, हिंदू एंड मुस्लिम्स. क्योंकि मुस्लिम्स को हमेशा लगता था कि कांग्रेस जो है ना, दैट इज द कमेटी ऑफ, कांग्रेस हमेशा डोमिनेट होती है बाय द हिंदू महासभा. मुस्लिम्स को हमेशा लगता था कि कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा एंड हिंदू महासभा is the committee of Hindus and would do nothing for Muslims. उनको ये हमेशा लगा रहता था कि वो उनके लिए कुछ नहीं करेगी. तो that's why this led to the division of Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन हो गई इंडिया की और पाकिस्तान बन गया. ठीक है. This led to the division of our country. There were communal riots at that time during the time of partition. तो वो communal riots में बहुत से लोग जो थे they lost their life. Many became refugees. बहुत सारा नुकसान हुआ था उन दिनों. तो इसमें हमने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में आपने यही सब कुछ पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही पढ़ोगे ना कि कैसे रिफ्यूजीज आ गए. इतने सारे रिफ्यूजीज को सेटल करना हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए वेरी डिफिकल्ट वर्क था. अभी अभी आज़ादी मिली थी. ठीक है. अभी अभी इतना ज़्यादा उन्हें लॉस हुआ था, इतने लोग, मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ इन कम्युनल राइट्स, बहुत कुछ हुआ था एंड मैनी पीपल बिकेम रिफ्यूजीज. जो पाकिस्तान से आए वो यहाँ पे आके रिफ्यूजीज हो गए. तो उनको घर, उनके लिए जॉब्स, उनको सेटल करना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको उन्हें सब कुछ करना था भी. फिर साथ में ब्रिटिश लेफ्ट प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. नियर अबाउट 500 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया. अब जाते वक्त ब्रिटिश उनको क्या कह के गए आपको पता है? उनको कह के गए वेदर टू ज्वाइन इंडिया और टू पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, चाहे आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, और चाहे आप फ्री रहो, डिपेंड अपॉन योर विश.
तो उनको ये कह के चले गए। उसी का रिजल्ट देखो, जम्मू एंड कश्मीर आज तक भुगता इंडिया ने, है ना, क्योंकि ब्रिटिश ये कह के चले गए प्रिंसली स्टेट्स को, आपकी मर्जी, आप इंडिया को ज्वाइन करो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहो, तो ये कह के चले गए और प्रिंसली स्टेट्स छोड़ गए। अब रिफ्यूजेस, इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स, तब कौन सा यूनिटी थी? वैसे भी इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इंडिया सिर्फ रिलीजन के नाम पे बट के, इंडिया सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान ही नहीं बना था, इंडिया में से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज इन अवर सोसाइटी, ठीक है। लो कास्ट पीपल, जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, दे वर ट्रीटेड बैडली बाय द हाई कास्ट पीपल। ये भी एक मेजर चैलेंज बन चुका था। फिर हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते थे। अभी भी तो डाइवर्सिटी है ना, कैसे हमारे फेमस ने फिर सब कुछ सेटअप किया, तो तब तो अभी सब कुछ सेट करना था। देयर वाज in our country then people of diverse group lived. They spoke different languages, their food habits सब कुछ उनका different था, dresses, हर चीज, language, ठीक है, हर चीज उनके customs, traditions, हर चीज लोगों की different थी, ठीक है। जैसे हम अपने आप को कंपेयर करें साउथ इंडियन किसी एक स्टेट के साथ, तो बहुत फर्क है हमारी फूड हैबिट्स और उनकी फूड हैबिट्स, बहुत फर्क है। हमारी डिशेस, उनकी डिशेस, बहुत डिफरेंसेस हैं। हमारी ड्रेस, जो भी हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की ड्रेसेस हैं, आप अपनी स्टेट ले लो पंजाब की, और उधर से आप दूसरी स्टेट कोई भी ले लो, गुजरात ले लो, उनकी ड्रेस जो भी है, ड्रेसेस है, बहुत फर्क है। हमारे और उनके फेस्टिवल्स में फर्क है, ये सारा कुछ, लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत फर्क है सब कुछ। तो तब तो ये तो भी चलो स्टेट्स बन गई, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक। तो सो मैनी डिफरेंसेस अमंग द पीपल इन दोज डेज। लोग हर चीज में डिफरेंट थे, फूड में, फूड आइटम्स में, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, हर बात में। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी, दैट वाज ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ऐसी कंट्री को सेटल, लोगों को सेटल करना बहुत, एक रिफ्यूजेस, प्रिंसली स्टेट्स, so many differences among the people on the basis of caste, religion, language, dresses, food items, ये सब कुछ, lot of differences. So it was very difficult for our framers to set up these people in the same country. It was very difficult to set up them in the same country. For such a country, they have to frame a constitution. अब उन्हें एक, पहले तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इनको ज्वाइन किया। प्रिंसली स्टेट्स, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको इकट्ठा किया, यूनाइट किया इन्हें। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ऐसी कंट्री के लिए जहां पे डाइवर्सिटी थी, ताकि इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके। तो दिस वाज द मेजर चैलेंज, टू अकोमोडेट द पीपल ऑफ डाइवर्स ग्रुप, टू सेटल देम इन द सेम कंट्री। तो कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हम कहेंगे उन्होंने जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की ना, दैट वाज अंडर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर हिमसेल्फ वाज दलित एंड ही वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो B.R. अम्बेडकर ने दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा एंड देन सिलेक्टेड द बेस्ट फीचर्स। तो इस वे से इन्होंने कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। 2 years 11 months 18 days लगे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, काफी टाइम लगा। दिस रेड द फीचर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, एंड देन दे सिलेक्टेड द बेस्ट फीचर्स, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर वेरियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी सबसे पहले मेन दी सबको। इक्वालिटी, आपको फीचर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के पता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी, ताकि रिलीजन के नाम पे झगड़े ना हुए, ये सब कुछ, यू नो द फीचर्स। कैसे हमारे फेमस ने इतने हार्ड वर्क से यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो लेके आए। तो ये हमारे फेमस का ही हार्ड वर्क है कि देयर इज डाइवर्सिटी बट इन अवर कंट्री, बट वी आर लिविंग टुगेदर इन द सेम कंट्री, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री,
ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड एफर्ट्स ऑफ आवर फ्रेमर्स। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही इतनी एफर्ट्स के साथ बनाया। तो एक तो ये, फिर उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप की। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नाउ वी आर लिविंग, जब पहले था तो पहले ऐसा नहीं था। यू नो कि पंजाब की कैपिटल क्या होती थी, शिमला, ठीक है। तो पहले पंजाब में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे। अब देखो, अगर हम हिमाचल जाते हैं तो वहाँ के लोग हिमाचली बोलते हैं, है ना। हमारे, अगर हम कर्नाटका जाते हैं तो कन्नड़, पंजाब में पंजाबी इज मेन। तो ये है लिंग्विस्टिक स्टेट्स कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रह जाए, ताकि लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या क्लैशेस ना हो, कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले। फिर उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप की, ठीक है। फिर देन लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की। लैंग्वेज पॉलिसी अब क्या, यू नो इट वेरी वेल, कि हमारे कंट्री में इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। हिंदी को नो डाउट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। वर्क, जब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी ना हमारी कंट्री में, तो देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों ने कहा विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे फ्रेमर्स ने हिंदी के साथ इंग्लिश को भी अडॉप्ट किया। तो अब हमारी कंट्री का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है, दैट इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बट देखो, उन्होंने और एक अच्छा काम किया, उन्होंने हर स्टेट को अपनी लैंग्वेज प्रमोट करने का राइट दे दिया। अवर स्टेट गवर्नमेंट जितना भी अपना स्टेट का वर्क है वो अपनी स्टेट लैंग्वेज में ही करती है, यू नो इट वेरी वेल। ऐसा है तो कभी आप अपने स्कूल्स में पंजाबी कंपल्सरी पढ़ते हो, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे दिया टू प्रमोट इट्स ओन स्टेट लैंग्वेज, ताकि किसी भी स्टेट की लैंग्वेज उस स्टेट में निग्लेक्ट ना हो। तो इस वजह से हमारे फ्रेमर्स ने स्टेट लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि दे कैन डू देयर वर्क इन देयर ओन स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश। तो इस वजह से उन्होंने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो सारा सिस्टम सेटअप किया, ताकि लोग जो है वो एक ही कंट्री में, मे बी फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप, बट दे कुड लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री।